ایلون مسک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس اسٹار لنک کو پاکستان میں سروس کی اجازت مل سکے گی؟ پاکستان کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کی ضرورت کیوں ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس، اسٹار لنک، سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس اور دیگر کمپنیز کے مالک ایلون مسک نے ایکس پر کنفرم کیا کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی وزیر مملکت برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ نے ایک پاکستانی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسٹار لنک کمپنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور اسپیس بورڈ اتھارٹی مختلف تکنیکی پہلوؤں پر غور کر رہی ہے۔ اسٹار لنک کو پاکستان میں اپنی سروس فراہم کرنے کے لیے پاکستانی اسپیس ایجنسی اسپارکو کی منظوری چاہیے، جس کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اسے لائسنس جاری کرے گی۔ گزشتہ سال پاکستان میں قومی سلامتی کو وجہ بنا کر حکومت نے انٹرنیٹ سے متعلق مختلف پابندیاں عائد کی تھیں۔ انٹرنیٹ کے بند ہونے یا سست رفتاری کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور بزنس کمیونٹی سمیت زندگی کے بہت سے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہوئے۔ ایسے میں سیٹلائٹ کے ذریعے فراہم کی جانے والی اسٹار لنک جیسی انٹرنیٹ سروس پاکستانی عوام اور کاروباروں کے لیے کتنی مفید ہو سکتی ہے اور حکومت کس حد تک اس پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہے گی؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے تنگ پاکستانی اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی متوقع سروس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ کافی یہ پرابلم فیس کرتے ہیں کہ آئے دن انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ کافی زیادہ لیگ کرتی ہے اور کنیکٹیوٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے، اور اگر اپنے ہم انٹرنیٹ پرووائڈر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے تو وہ ہمیشہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے۔ تو ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے میرے خیال سے جو اسٹار لنک کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے یہ کافی ہیلپ فل ہوگی ہمارے لیے، اور اس سے ہمارا جو بزنس ہے اس میں گروتھ بھی کافی زیادہ ہوگی۔ سب سے بڑی جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز میں اس کی فنکشنالٹی ہوگی، ہلی ایریاز ہو گئے یا بہت سے جو جہاں پہ دور دیہات جہاں پہ پاکستان کے کرنٹ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز سروسز پرووائڈ کرنے سے قاصر ہیں، وہاں پہ ان کی اپلیکیبلٹی بہت اچھی ہوگی۔ تو میرے خیال سے وائڈر ایریا کور ہوگا اور ایک اچھا پاکستان کا ٹیکنالوجیکل امیج بنے گا۔ میرے خیال میں اگر پاکستان کے اندر اسٹار لنک آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بیٹر رہے گا۔ کس طرح اسٹار لنک ایک سیٹلائٹ بیسڈ وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشن پرووائڈ کرتا ہے ہمارے جو رورل ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں، ایون وائرڈ انٹرنیٹ کنیکشنز میں بھی ہمارے پاس بلائنڈ اسپاٹس رہ جاتے ہیں، ان کو کور کرے گا۔ کچھ ایسے ایون یونیورسٹیز میں، ایجوکیشنل سیکٹرز میں، انڈسٹریل سیکٹرز میں یہ بہت بہتر طریقے سے امپلائیز کو، آرگنائزیشنز کو کیٹر کر سکتا ہے۔ جو ابھی اسکول کے مطلب جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم یہ انٹرنیٹ کے تھرو اسٹار لنک کے تھرو جو ہے کافی ایجوکیشن میں امپرومنٹ دے سکتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے آن لائن ریسورسز اویلیبل ہو جائیں گے، اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ہیلی ایریاز ہیں جیسے کہ ہم ناردرن سائڈس پہ جاتے ہیں، گلگت وغیرہ، وہاں پہ انٹرنیٹ کی اس طرح کوئی ایسے اویلیبلٹی نہیں ہے کیونکہ جو وہاں پہ انٹرنیٹ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اسٹار لنک سے ہمیں اس چیز میں بہت فائدہ ہوگا، اور جو ہمارے ظاہر سی بات ہے ہماری مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی بڑھے گا۔ جو آلریڈی سروس پرووائڈرز ہیں ان کو بھی پھر یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ہمیں ایک بہتر انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا، اور کمپٹیشن کی وجہ سے ہماری جو اوور آل سچویشن ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی۔ ایز اے ایجنسی اونر پچھلے 3 سالوں میں میں نے جو سب سے بڑا مسئلہ فیس کیا ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، اور کلائنٹ ہمیں کہتا ہے کام کریں، اور ان پاکستان وی ہیو ویری سویئر ایشو آف دا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایشوز اینڈ آل دیس اسٹف، سو آئی تھنک اف اسٹار لنکس از ان پاکستان تو ہم ان سارے مسئلوں کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹار لنک انٹرنیٹ سروس کی منظوری کا عمل کہاں تک پہنچا ہے اور کیا حکومت اس کمپنی کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت دے گی؟ اس بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں ارحم خان کے پاس جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ارحم، اسٹار لنکس کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے ابھی کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا اور ہر مرحلے کو کلیئر کرنے اور حتمی منظوری تک میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ فائدہ اس طرح سے ہے کہ یہ کمپنی تو پاکستان میں رجسٹر ہو چکی ہے، لیکن ابھی اسے کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا، جیسے کہ ابھی جو اپلیکیشن ہے وہ ان پروسیس ہے پاکستان اسپیس ایجنسی اسپارکو کے پاس، اور وہ تمام جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہیں ان کا جائزہ لے رہی ہے
अगर उनसे इजाज़त मिल जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वो इन्हें लाइसेंस जारी करेगी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो ये तमाम तर स्टेजेज़ हैं जिससे अभी स्टारलिंक को गुज़रना पड़ेगा। अभी इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से इंटरनेट की बंदिश भी रही है। तो अब हुकूमत इस तरह है कि आज अगर स्टारलिंक को इजाज़त दी जाती है पाकिस्तान में ऑपरेशन करने की, तो किस हद तक उनका कंट्रोल उस पर रहेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ओकेजन के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट बंद करती है। तो ये भी एक चीज़ गवर्नमेंट के जहन में है कि जब हम उनको इजाज़त दें तो किस हद तक हम इजाज़त दें, क्या कंट्रोल हमारा गवर्नमेंट का होना चाहिए, या उनके साथ ऐसी कोई निगोशिएशन हो कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे या उनको ज़रूरत हो तो वो स्टारलिंक से कहकर जो इंटरनेट है उसको कुछ एरियाज में बंद करवा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोच रही है। और दूसरी चीज़ जब हमारे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स से और कुछ एक्सपर्ट्स जो गवर्नमेंट में पहले रह चुके हैं उनसे बात हुई, तो उनका भी यही था कि वो फिर उम्मीद तो है, लेकिन किसी ने भी ऐसा टास्क नहीं दिया कि ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट की तरजीहात में कुछ शामिल नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तमाम प्रोसेस को महीने 2 में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन अभी प्रायोरिटी पे नहीं है ये चीज़। और दूसरी बात ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात भी रहे हैं और भी सिक्योरिटी रीजंस रहे हैं, तो उस वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री, IT मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वहाँ से भी इनपुट लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही स्टारलिंक को पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, उसका फैसला होगा। एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उससे ज़्यादा जो पॉलिसी डिसीजन है उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है। अरम, अभी आपने खुद भी जिक्र किया हुकूमती कंट्रोल का सर्विसेज के हवाले से। हमने देखा है कि पाकिस्तान में हर तरह की जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उस पर हुकूमत का कंट्रोल होता है और वो उन पर बराह रास्त या किसी भी कानून के ज़रिए पाबंदियाँ भी लगाती रहती है गवर्नमेंट। अब स्टारलिंक्स जैसी जो इंटरनेट सर्विस है जो सैटेलाइट के ज़रिए सारिफीन तक पहुँचाई जाती है, तो हुकूमत को किस हद तक खदशात हैं कि इस कंपनी की सर्विसेज पे कंट्रोल के हवाले से? बिल्कुल ये बहुत अहम चीज़ है और इस पे हुकूमत अभी गौर कर रही है, क्योंकि स्टारलिंक जब पाकिस्तान में आएगी तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये खतरा तो है कि कहीं हमारा कंट्रोल ना ख़त्म हो जाए। अगर उनको कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज़ में या कुछ स्पेशल ओकेजन पे अगर इंटरनेट बंद करना पड़ता है तो किस हद तक उनका कंट्रोल रह पाएगा या नहीं। यही तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि स्टारलिंक के साथ वो अभी निगोशिएशंस करेंगे, क्योंकि अभी वो टेक्निकल एस्पेक्ट का जायज़ा ले रहे हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसर एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है उसके बाद यही चीज़ सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमारा कंट्रोल इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट पर कितना रह जाएगा। तो ये सबसे अहम और जो एस्पेक्ट है वो सामने आ रहा है अभी तक। बहुत शुक्रिया। अरहम खान इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी कि स्टारलिंक वेबसाइट पाकिस्तान में हुकूमत की जो है मंजूरी से मिल पाएगी, किन मराहिल से गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। स्टारलिंक वेबसाइट के मुताबिक उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस आम शहरियों और बिजनेस कम्युनिटी के लिए समंदर में बहरी जहाज़ों, सफ़र करती गाड़ियों वगैरह तक के लिए भी फराहम की जाती है, क्योंकि ऐसी इंटरनेट सर्विस के लिए केबल्स बिछाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये डिश लगाकर दूर दराज इलाकों तक भी पहुँचाई जा सकती है। वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर के 7 बरे-आज़मों के 118 से ज़ायद मुल्कों में स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके सारिफीन की तादाद 46 लाख से ज़्यादा है। ज़ाती इस्तेमाल के लिए इसकी इंटरनेट सर्विस की माहाना कीमत $120 है, लेकिन लोकेशन की बुनियाद पर उसमें कंजेस्शन जैसे चार्जेस का इजाफा भी किया जाता है। ज़ाती इस्तेमाल के सारिफीन की 3 कैटेगरीज यानी पर्सनल, रोमिंग और बोट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माहाना चार्ज $1000 है। बिजनेस की 3 कैटेगरीज यानी फिक्स्ड, मोबाइल और बहरी जहाज़ों और कश्तियों के लिए $140 से $5000 तक माहाना चार्ज किए जाते हैं। इलॉन मस्क की जानिब से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की पाकिस्तान फराहमी पर अवाम की जानिब से तो खुशी का इजहार नज़र आ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसकी मंजूरी के इम्कानात और दीगर इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद से सैयद अहमद ज्वाइन कर रहे हैं। वो IT एक्सपोर्ट कंपनी DPL के CEO हैं और IT के शोबे के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान में पहले भी कुछ कंपनीज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज फराहम कर रही हैं, जैसे सिंटेल
Telix ہے, بزنس کام ہے, وتین وغیرہ. ایلون مسک کے اسٹار لنک انٹرنیٹ میں ایسا کیا مختلف ہوگا جو ابھی تک پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ جی اس وقت پاکستان میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ انٹرنیٹ پینیٹریشن کا ہے, اور اس وقت 50% صرف پینیٹریشن ہے ہماری فائبر آپٹک کی, اگر یونین کاؤنسلز کے حساب سے دیکھا جائے, اور موبائل براڈ بینڈ کی بھی ہماری 40% to 50% پاپولیشن ڈائریکٹلی موبائل براڈ بینڈ یوز کر رہی ہے. سیٹلائٹ انٹرنیٹ اسپیشلی اسٹار لنک کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کونے کونے تک انٹرنیٹ پینیٹریشن کو ڈے 1 سے لے کے جا سکتی ہے, اور کیونکہ پاکستان میں انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ کمی رہی ہے, اسپیشلی یو ایس ایف فنڈ جو اس کام کے لیے بنایا گیا پچھلے 2 سال میں انہوں نے بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, ہمارے ٹیلی کام ٹاورز بھی فائبر آپٹک کے تھرو کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اسٹار لنک یہ ہماری ساری جو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی جو نیڈ ہے اس کا ایک طرح سے شارٹ کٹ پرووائڈ کر سکتا ہے, اور ڈائریکٹلی ڈے 1 سے کوالٹی آف سروس کے ساتھ انٹرنیٹ کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا جا سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اسٹار لنک کو آپریٹ کرنے کے لیے لائسنس دے گی؟ دیکھیں اس میں 2 اینگلز ہیں. ایک انفراسٹرکچر کا اینگل ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اگر انفراسٹرکچر آج لگانا شروع کریں فائبر آپٹک تو اس میں سالوں چاہیے, تو اس حوالے سے تو پاکستان کے لیے بزنس کیس بہت اچھا ہے اس کے لیے. مگر پاکستان کا جو ہسٹری ہے بگ ٹیک کمپنیز کے ساتھ, اسپیشلی سوشل میڈیا کمپنیز اور امریکن ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ, اس میں کنٹرول کا بہت زیادہ پرابلم ہے. اور یہ کنٹرول کا ایشو پاکستان میں تو اسپیشلی ابھی جو وی پی این کے ڈیبیٹ کے بعد سوشل میڈیا کنٹرول اور انٹرنیٹ کنٹرول کی وجہ سے پاکستان میں زیادہ کریٹیکل ڈیبیٹ ہے. مگر ایون امریکہ جیسے ملک میں بھی سینسرشپ آن دا انٹرنیٹ کی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور ملک آج کل چاہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ کنٹرول رکھیں. اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں ایشو یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول گورنمنٹ کا اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے موبائل فون کمپنیوں پہ یا براڈ بینڈ کے اوپر ہوتا ہے. تو اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ کو کنٹرول کرنے کی جو نیڈ ہے گورنمنٹ کی, اور امریکن ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کا جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت مجھے ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. اور اس کے اندر پھر جو ماڈلز ایکسپلور کیے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل ڈائریکٹلی کنزیومرز کو اگر سیٹلائٹ نہ اویلیبل ہو اور انسٹیڈ وہ کوئی مڈل مین کے تھرو جیسا کہ موبائل کمپنیوں کے بیک ہال کے طور پہ یوز کر لیا جائے, تو اس طرح کے اگر ماڈلز لے کے آئے جائیں جس میں گورنمنٹ کو بھی کنٹرول ملے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سیٹلائٹ کی جو بینیفٹ ہے ڈائریکٹ کنزیومر کے لیے وہ بڑا اس کے اندر نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تو اسٹار لنک اور ایلون ماسک پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کر کے ان کے کنٹرول کے خدشات کو دور کرتی ہے تو پھر تو ان کو لائسنس مل سکتا ہے. مگر پاکستان کی مارکیٹ انفارچونیٹلی اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ باہر امریکن بگ کمپنیز جیسے وہ انڈیا سے بات کرتی ہیں, وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اس لیول پہ انگیج نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ کو ان کو بین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا روکنا پڑتا ہے. رائٹ. تو پاکستان میں کس طبقے کو اس سے فائدہ پہنچے گا اگر اسٹار لنکس کو ملک میں آپریٹ کرنے کی منظوری مل جاتی ہے؟ جی میرے خیال میں اس کا بینیفٹ بہت سارے پاکستانیوں کو, اسپیشلی ہمارے دور دراز بلوچستان ہے, ہمارے رورل ایریاز ہیں, ناردرن ایریاز سارا ہے, ہمارا ٹورزم سیکٹر ہے, بزنس کلاس ہے, ان سب کو ڈائریکٹلی بہت فائدہ ہوگا. بزنس کنٹینیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے فری لانسرز ہیں, اگر تو اسٹار لنک پاکستان میں آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فری لانس انڈسٹری ہے, ہماری آئی ٹی انڈسٹری کی جو بزنس کنٹینیوٹی کے ایشوز ہیں, اور اسپیشلی اوور آل پاکستان میں جو جتنی پاپولیشن ہے جو اس وقت میں کہوں گا ڈس انفرنچائزڈ ہیں اور وہ ابھی انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے اور اپنا بزنس نہیں کر پا رہے, میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ڈائریکٹلی پاکستان کو, اسپیشلی جیسے پاکستانی گورنمنٹ کی بھی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا سلوشن ہو جو 3 مہینے کے اندر کوئی میجک سلوشن ہو, تو میرے خیال میں یہ اسٹار لنک کین بی دیٹ میجک سلوشن جو پاکستانی پاپولیشن کی جو انفراسٹرکچر ایشوز ہیں, بزنس کنٹینیوٹی ایشوز ہیں, جو بزنس کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضروریات ہیں اس کو
बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। आपने भी जिक्र किया कि बहुत से लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि स्टारलिंक जैसे एडवांस सैटेलाइट सिस्टम को आम पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसकी जो प्राइसिंग पॉइंट है, अगर वो पाकिस्तान में 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ, 60 हज़ार रुपये पर मंथ आम हमारे फ्रीलांसर्स या कंज्यूमर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर पाकिस्तान में ये बड़ी सालों से, बल्कि डेकेड से एक मॉडल चलता आ रहा है जिसमें किसी भी कोई अंदरून मोहल्ले में बैठा हुआ, किसी जगह पे बैठा हुआ बंदा एक कनेक्टिविटी लेता है और वो केबल अपनी के ज़रिए अपने इर्द गिर्द के जो दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स निकल सकते हैं जो उस सैटेलाइट को लेके और उसको डिवाइड करके आपस में, तो वो 8, 10, 15 यूज़र्स पे वो कॉस्ट डिवाइड होकर अपना काम चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली एक कस्टमर तो शायद अफोर्ड ना कर सके, मगर पाकिस्तानी जो लोग हैं उसको हम कहते हैं जुगाड़ इनोवेशन, तो वो जुगाड़ इनोवेशन से बहुत सारे अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट। इंडिया में भी स्टारलिंक की दरख्वास्त जो है वो प्रोसेस में है। मालदीव्स में स्टारलिंक की सर्विस ऑलरेडी मौजूद है। पाकिस्तान में अब इसकी जो है हुकूमत की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है। क्या इलॉन मस्क के टेक्नोलॉजी प्लान्स के लिए ये जो खित्ता है जनूबी एशिया का, ये अहम है और क्यों? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये जो खित्ता है पूरा, जैसे एक टाइम पे गूगल ने भी नेक्स्ट बिलियन यूज़र्स की एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ था। यहाँ पे जो इस पूरे खित्ते में 1.5 से 2 अरब लोग रहते हैं, जो कि फ्यूचर ऑफ जो जब हम कहते हैं डिजिटल का और आईटी का, वो एशिया में है। और मेरे ख्याल में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्लान्स हैं उसमें आजकल सारी दौड़ आई बॉल्स की है, कितने यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, कौन उसको इन यूज़र बेस को डोमिनेट करता है। तो मेरे ख्याल में तो ये खित्ता बहुत ज़रूरी है किसी भी बड़ी टेक कंपनी के लिए कि वो इस पूरे खित्ते में आ सकें। मगर डिबेट सारी कंट्रोल की वापस वहाँ आती है। इंडिया में भी अगेन वो जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे जो रेबल मूवमेंट हो रही है, तो उसमें वो कहते हैं कि स्टारलिंक का यूजेज हो रहा है, जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने भी दरखास्त की हुई है कि उस पर कंट्रोल दिया जाए। तो मेरे ख्याल में इस खित्ते में बहुत स्टारलिंक को भी ज़रूरत है, मगर यहाँ पे वो जो अमेरिकन फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो कॉनोटेशन है, उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल चाहिए होगी सोच में, ताकि वो यहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाए। आपने ये जिक्र किया कि गवर्नमेंट को जो कंट्रोल के हवाले से कंसर्न्स हो सकते हैं। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की, उस इंटरनेट को बंद करने के लिए गवर्नमेंट्स के पास कौन कौन से तरीके होते हैं? देखिए, सैटेलाइट को रोकना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें यही होता है कि वो फिर उस सैटेलाइट को उस मुल्क में बिकने ना दें, या उस मुल्क में उसकी सेल को, या उसको जो लोगों ने उसके लिए पैसे पे करने हैं उसको मुश्किल कर दें। तो उसके अलावा लोग अगर कोई डिश लगाता है तो उसको गैर कानूनी करके वो उसको किसी हद तक लोगों को उसकी सेल को कम तो कर सकते हैं, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये स्टारलिंक के साथ गवर्नमेंट की डील हो जाती है, तो फिर तो इनके पास मैकेनिज्म्स हैं जिसमें स्टारलिंक वॉलंटरीली इनको एक गेटवे प्रोवाइड करे, जिसके थ्रू जो ट्रैफिक जितनी सैटेलाइट के थ्रू जा रही है उस पे इनको मॉनिटरिंग कंट्रोल दे सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से सैयद अहमद हमें बता रहे थे कि उनके ख्याल में स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान के लिए एक मैजिक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के कंसर्न्स पे भी उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के नतीजे में होने वाले माली नुकसानात के लिहाज से दुनिया भर में सर फहरिस्त रहा। इंटरनेट पर नज़र रखने वाले टॉप 10 VPN.com की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी सतह पर इंटरनेट में खलल 88,700 से ज़ायद घंटे जारी रहा, जिससे मजमूई तौर पर $7.5 अरब का माली नुकसान हुआ। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और बंदिश की वजह से पाकिस्तान $1.62 अरब के खसारे के साथ सर फहरिस्त है। 2 जनवरी को जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 9,700 से ज़्यादा घंटे तक इंटरनेट बंद रहा और 8 करोड़ से ज़्यादा सारिफिन मुतासिर हुए, जिसकी बुनियादी वजूहात इंतखाबात और एहतजाजी मुजाहिरों को करार दिया गया है।
जदीद दौर में इंटरनेट एक अहम ज़रूरत है और बहुत हद तक मुल्की मईशत का इन्हिसार इस सर्विस पर है। हमने कुछ अर्सा पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें पाकिस्तान में इंटरनेट में खलल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में मुश्किलात के सबब ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करने वालों की मुश्किलात का जिक्र था। इसमें वो फ्रीलांसर्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में बैठ कर अमरीका और यूरोपीय ममालिक को IT सर्विसेज फराहम करते हैं। लाहौर से हमारे साथी नवीद नसीम ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, आइए आपको दोबारा दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो जाए इंटरनेट और जो आपका नेटवर्क है वो एरर दे देता है। लाइक अभी तक 40% जो है हमें डैमेज इसके ऊपर जो है वो बेयर करना पड़ रहा है। VPN और प्रॉक्सी हमारे काम कोई भी नहीं आती। फाइबर के एल्गोरिथम इतने स्ट्रॉन्ग है वो आपकी प्रोफाइल को बैन कर देते हैं। शॉर्ट स्टोरीज के इंटरनेट नहीं है तो IT कुछ भी नहीं है। इंटरनेट की वजह से हमें जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल फेस करना पड़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइबर प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो जब एक क्लाइंट आता है फाइबर के ऊपर और उसको ये सामने शो होता है कि पाकिस्तानी रीजन से आप ना कांटेक्ट करें, वहाँ पर इंटरनेट के इशू चल रहे हैं, सो ही और शी विल मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। वर्डप्रेस डेवलपर इंटरनेट के साथ चलेगा, ऐप डेवलपर इंटरनेट के साथ चलेगा, कंटेंट राइटर इंटरनेट के साथ चलेगा, SEO वाला इंटरनेट के साथ चलेगा। ऑल इन ऑल के मेरा ई-कॉमर्स का स्टोर है वो भी इंटरनेट के साथ है। क्लाइंट अगर मुझे कोई इमेज भेज रहा है तो इमेज डाउनलोड नहीं हो रही, वॉइस नोट भेज रहा है तो वो नहीं डाउनलोड हो रहा, तो मतलब मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म है। लाइक अभी तक 40% जो है हमें डैमेज इसके ऊपर जो है वो बेयर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हमारी डिलीवरीज जो है वो लेट हो रही हैं, हमारे पास नए ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे, नए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में हमें बहुत सारा गैप क्रिएट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आउटरीच ऑफ इंटरनेट। सैलरीज अब हमें अपने सेविंग्स में से निकाल के देनी पड़ रही हैं। ऑफिस के एक्सपेंस को ऑफिस सुबह आके ऑन होता है तो ऑफिस का एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता है, वो एक्सपेंस भी हमें अपने बैकअप प्लान में से बेयर करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम अपनी VPN लगा के प्रॉक्सी लगा कर लोकेशन चेंज भी कर देते हैं तो फाइबर के एल्गोरिथम इतने स्ट्रॉन्ग है वो आपकी प्रोफाइल को बैन कर देते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी और लोकेशन पे कैसे शो कर सकते हैं। VPN और प्रॉक्सी हमारे काम कोई भी नहीं आती क्योंकि हमारी काम की सेंसिटिविटी इस तरह की है कि हम उसके अंदर साइबर अटैक नहीं चाह सकते या कोई भी अटैक, मार्वेल फलाना ढिमकाना कोई भी अटैक, इसलिए हमारे जो क्लाइंट्स के डाटा हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। बेसिकली जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है ना उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कंपेयर टू लोकल मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक से आप कम्पीट कर रहे होते हैं। सो जब क्लाइंट आपको एक मैसेज करता है और आप प्रॉपर्ली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो क्लाइंट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पर्सन, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो बांग्लादेश से हो। क्लाइंट अगर हमारा दुबई में, कुवैत में, अमेरिका में, सो वट एवर गल्फ कंट्री कहीं पे भी अवेलेबल है तो हमें उसके पास फिजिकली अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर ये कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं करते तो हम अपना काम ही चेंज कर सकते हैं समहाउ के उसके अंदर इंटरनेट का कोई कंसर्न हो तो बिल्कुल माइनर सा हो। हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल जो है वो क्रिएट की जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं व्हाट्सएप की, अगर आपको किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ 1-on-1 आपकी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है, सो यू आर अनेबल टू लोड द इमेजेस, अनेबल टू लोड द वॉइस नोट्स, जस्ट आप एक टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं अंटिल अनलेस आप उसके ऊपर VPN लगाएं तो उसकी वजह से आपकी जो है वो इमेजेस डाउनलोड हो पा रही हैं, आपकी जो ऑडियो नोट्स है वो डाउनलोड हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो हमारे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम VPN यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसको देखते हुए हमारा क्लाइंट का और हमारा जो क्लाइंट और वेंडर का एक जो होता है ना ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा। शॉर्ट स्टोरीज के इंटरनेट नहीं है तो IT कुछ भी नहीं है। आज के शो में हमने बात की पाकिस्तान में स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की आने की, उसकी आमद के हवाले से जो एक एक्साइटमेंट जनरेट हुई है। हमारे एक्सपर्ट ने इस हवाले से कुछ इश्यूज़ भी रेज़ किए। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है इंटरनेट पे, उस हवाले से और सेंसरशिप के हवाले से उनके कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में चूँकि इंटरनेट की जो रीच है वो 50% से कम है, इसलिए इस तरह की सर्विस बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।